Hello friends, welcome to my channel. So today I am going to tell you practically how in Java 8 lambda expressions work, stream operations work. Okay, so stream API concept is there in Java 8. So I told you in the PPT in my previous video that Java 8 has lambda expressions, stream APIs, functional interface. There are improvements in concurrency in datetime API. So I am telling you the basic that how stream operations and for each operation works. Okay, so let's talk about stream API. So there are functions, inbuilt functions of stream method. So when we say about the collection, like whether I am holding the list or hash map, so from that collection I can call the stream method. Okay, so let's talk about the scenario where there is an employee class and I have created the fields here: ID, employee ID, name, employee age. Okay, let's three variables are there in employee class. Now there is a scenario that I have to print like I have to count how many employees are there. Okay, and I have to tell that what is the minimum age, okay, in the employee class. So these are the various scenarios where stream operations work. Okay, so I have created the constructor also because I will pass the hard-coded values from constructor when the object will create. This is in main method I have created the list, array list, okay, which is of employee type. It means it will hold the employee objects. Okay, so when I am adding, so while creating the object of employee class, I am passing the hard-coded values. In ID I am passing 012 employee ID, employee name Vinay, and age 24. Okay, employee ID 013 Vinay, Daksh name, then 35 age. Okay, so I have added the three objects here in the list. Now stream method, I will call the stream method from the collection. Collection is the employee list. Okay, emp list is the object of array list. Okay, so from there I will call the stream method. stream method मैंने collection से कॉल कर लिया लिस्ट से. अब stream method से मैं बहुत सारे intermediate operations कॉल कर सकता हूँ. ठीक है, अब intermediate जो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं और उसके बाद फिर टर्मिनल ऑपरेशन कॉल होता है. टर्मिनल का मतलब जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, ओके, जो एंड में लगते हैं, उन्हें टर्मिनल ऑपरेशंस बोलते हैं. जैसे फॉर ईच है, ठीक है, वो टर्मिनल है. इंटरमीडिएट में मैप हो गया, फिल्टर हो गया, ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, फिल्टर मेथड. ठीक है, तो सपोज यहाँ मैंने कमेंट कर रखा है कि प्रिंट हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर प्रेजेंट. मुझे प्रिंट करना है कि कितने एम्प्लॉयज प्रेजेंट हैं. ओके, तो सपोज 012 जिसकी एम्प्लॉय आईडी होगी वो कितने बार है. ठीक है, तो वो मुझे सपोज करो काउंट करना है. तो ये एम्प्लॉय आईडी अगर यूनिक है तब तो ये एक ही बार होगा, एक ही एम्प्लॉय होगा इस आईडी का. ठीक है, आईडी यूनिक होगी. तो एक सिनेरियो मैंने इस टाइप का निकाल दिया कि स्ट्रीम मेथड से फिर मैं कलेक्ट मेथड कॉल करूंगा. कलेक्ट मेथड क्या लेता है, कलेक्टर्स, ठीक है, स्ट्रीम का ही, ठीक है, स्ट्रीम का ही क्लास है कलेक्टर्स. फिर कलेक्टर्स से मैंने बहुत सारे मेथड आते हैं कलेक्टर्स के अंदर. ग्रुपिंग बाय, एवरेजिंग भी होगा. ठीक है, एवरेज करना हो या ग्रुप करना हो. तो ग्रुप मतलब कि जब कोई हमें काउंट करना पड़ता है, ठीक है, जैसे हम एसक्यूएल क्वेरी या कोई क्वेरी लिखते हैं, माई एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, तो उसमें हमें जब
ग्रुपिंग करनी पड़ती है, जब कोई काउंट करना पड़ता है कि ये आईडी कितने बार होगा, या ये जो मेरी एम्प्लॉय है ये कितने बार एग्जिस्ट करता है, रो कितने बार है। तो काउंट करने के लिए हम सबसे पहले ग्रुप करेंगे, तब जाके वो उसको काउंट करता है। तो ग्रुपिंग बाय भी यहाँ पे एक मेथड है। ग्रुपिंग बाय 2 आर्गुमेंट लेता है, एक आईडी, किसके बेस पे हमें ग्रुप करना है, किसको ग्रुप करना है। मैं आईडी को ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है, आईडी को ग्रुप कर रहा हूँ। तो मैं ग्रुपिंग बाय के अंदर आर्गुमेंट कैसे पास करूँगा, मेरा जो क्लास का टाइप है वो क्लास मेरी एम्प्लॉय है, और डबल कोलोन के बाद, ये डबल कोलोन लगा है, उसके बाद मैं मेथड कैसे कॉल कर रहा हूँ, गेट मेथड, जो मैंने गेटर सेटर बना रखे हैं। तो वैसे ही मैं उसका आईडी का मेथड गेट मेथड कॉल करूँगा, क्योंकि गेट आईडी मेरे को वो आईडी दे देगा जो 012 दे देगा आईडी, ठीक है, क्योंकि गेट आईडी मेथड कॉल हो रहा है। यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगता है, खाली ऐसे ही कॉल होता है कि गेटर मेथड, गेट आईडी, गेट नेम, आगे से पैरेंथेसिस नहीं लगता। फिर सेकंड आर्गुमेंट में क्या दे रहा हूँ, कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग मेथड, ठीक है, काउंटिंग मेथड भी है कलेक्टर्स के अंदर। ग्रुपिंग बाय है, काउंटिंग है, एवरेजिंग है। तो काउंटिंग फिर उसको आईडी को काउंट करेगा ग्रुप करके कि ये आईडी इस क्लास में कितने बार यूज्ड है, ठीक है, तो वो काउंट दे देगा मेरे को। देखो मैंने अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मैंने अब जो मेरे को ये पूरा कलेक्ट मेथड देगा, ये मैप टाइप का ऑब्जेक्ट देगा। तो मैंने इसको असाइन किस में कर दिया, मैप टाइप का। मैप का भी की वैल्यू पेयर होता है। तो मैं जब ग्रुपिंग बाय ले रहा हूँ 2 आर्गुमेंट, तो पहला तो मेरा आईडी हो गया, क्योंकि आईडी इंटीजर टाइप का है, तो मेरा इंटीजर जो ये टाइप होगा, जेनरिक टाइप मैप में, वो इंटीजर रखूंगा मैं, ठीक है। सेकंड जो काउंटिंग करके देगा, वो काउंट बताएगा मेरे को कि ये इतने बार है, तो यहाँ पे मैंने इसको लॉन्ग रख दिया है, ठीक है, ये जेनरिक टाइप लॉन्ग रख दिया मैंने। अब मैं जब इस मैप को प्रिंट कराऊंगा तो मेरा ये ऐसे की वैल्यू में बता देगा कि ये आईडी इतने बार यूज है। जावा एप्लीकेशन रन करी मैंने, यहाँ देखिए बता दिया ना उसने की वैल्यू में कि जो मेरा 10 वाला है वो एक बार ही है, ठीक है, 11 एक बार, 12 एक बार, ठीक है। 012 ना लिखे, मैंने 12 लिखा है, 12 13 14 कर दिया है, ठीक है। तो अब रन करा के देखूंगा मैं इसको, तो मेरा 12 आईडी एक बार है, 13 आईडी एक बार है, एम्प्लॉय आईडी 14 एक बार है, ठीक है। तो इसने काउंट कर दिया ग्रुप करके, किसके बेस पे किया, आईडी के बेस पे। तो ये एक स्ट्रीम मेथड से मैं जो कलेक्ट मेथड कॉल कर रहा हूँ, ये मैप टाइप का रिटर्न करेगा। मैप भी जेनरिक टाइप होता है की वैल्यू में, की इंटीजर टाइप है, और काउंटिंग करके जो मेरे को दे रहा है वो लॉन्ग टाइप रख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको इंटीजर करता हूँ तो भी मिसमैच एरर दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप में है जो, ठीक है, जो कलेक्ट मेथड में ले रहा हूँ ग्रुपिंग बाय, ये ग्रुपिंग बाय मेरा लॉन्ग टाइप लेता है। तो इसीलिए मैं जो रिटर्न करूंगा मैप टाइप में, वो भी मेरा वैल्यू भी लॉन्ग टाइप होगा, क्योंकि ग्रुपिंग बाय में लॉन्ग एंटिटी पहले से ही डिफाइंड है। यहाँ पे लॉन्ग रैपर क्लास आएगी, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो, सपोज करो मेरे को सारे एम्प्लॉय नेम प्रिंट करने हैं, सारे एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम कैसे स्ट्रीम मेथड से मैं प्रिंट कराऊंगा, मुझे लिस्ट से स्ट्रीम मेथड लेना है, ठीक है। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पाइपलाइन है, उसमें एक फ्लो होता है जो पाइप वाटर का। तो ऐसे ही स्ट्रीम मेथड में मेरा डेटा पड़ा हुआ है एक, ठीक है, डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को मैं फिल्टर कर रहा हूँ, तो फिल्टर मेथड लूंगा, किसके बेस पे फिल्टर कर रहा हूँ, ठीक है। मैप ले रहा हूँ, मैप इंटरमीडिएट ऑपरेशन होता है, यानी कि वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, और फॉर ईच होता है टर्मिनल ऑपरेशन। तो स्ट्रीम मेथड से मैंने मैप लिया, मैप फिर मैप करेगा एम्प्लॉय को नेम में, ठीक है, ये एम्प्लॉय क्लास है, और डबल कोलोन से हम मेथड कॉल करते हैं, ठीक है, और मेथड में पैरेंथेसिस नहीं आता है,
ठीक है, गेट नेम कर दिया मैंने क्योंकि मुझे नेम के बेस में नेम चाहिए मुझे एम्प्लॉय के, तो मैंने मैप किसको कर दिया, एम्प्लॉय को नेम से। फिर उसके बाद मैंने मैप से एक डिस्टिंक्ट मेथड कॉल किया है। फिर से डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक देगा, ठीक है, जैसे एसक्यूएल क्वेरी में भी हम करते थे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है जो यूनिक नेम प्रिंट करेगा, ठीक है, डुप्लीकेट जो होंगे उनको एक बार ही प्रिंट करेगा। फिर डिस्टिंक्ट से फॉर ईच मेथड, फॉर ईच में मेरे को फॉर ईच के अंदर क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट, फिर डबल कोलन के साथ प्रिंटलन, ठीक है। प्रिंटलन एक मेथड है जिसको मैं कैसे कॉल कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट के साथ डबल कोलन के साथ, ठीक है। तो फॉर ईच के अंदर ये जब मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डबल कोलन प्रिंटलन, यानी कि मेरा कंसोल में फॉर ईच का मतलब इटरेट करेगा सारे के सारे एक एक करके एलिमेंट्स, और कंसोल में प्रिंटलन मेथड की मदद से मेरे को प्रिंट करा देगा, ठीक है। सिस्टम क्लास होती है, आउट उसका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट से मैं प्रिंटलन मेथड कॉल करता हूँ, यही मतलब होता है सिस्टम डॉट आउट, ठीक है। सिस्टम प्रिंट स्ट्रीम की क्लास होती है, ओके। तो सपोज करो एक और सिनेरियो बनता है कि मिनिमम एज एम्प्लॉय मुझे निकालना है। अब फ्रेंड्स ऑप्शनल मैंने बताया था, ऑप्शनल इंटरफेस होता है, ऑप्शनल का भी जेनरिक टाइप है, मैं एम्प्लॉय रखूंगा। अब ये लिस्ट से मैंने स्ट्रीम मेथड कॉल किया, स्ट्रीम मेथड से फिर मिन करा, मिन का मतलब मिनिमम, सबसे लोएस्ट दे देगा मेरे को, सबसे लोएस्ट एज, ठीक है। मिन मेथड कॉल किया, मिन मेथड के अंदर कंपेरेटर लगा के मैंने, कंपेरेटर इंटरफेस होता है, बताया था मैंने, वीडियो बना रखी है इसका, कंपेरेटर इंटरफेस का कंपेयरिंग इंट मेथड है। कंपेयरिंग इंट मेथड क्या करता है, किसी इंटीजर जो डेटा टाइप जिसका इंटीजर टाइप का होगा उसको कंपेयर करेगा वो, ठीक है। सपोज करो एम्प्लॉय में मेरे को मिनिमम एज निकालनी है, तो मैं कंपेयरिंग इंट मेथड के अंदर गेट एज मेथड से मेरे को एज मिलेगी, वो मुझे कॉल करना है, उसे कंपेयर करना है एज को, तो मुझे गेट एज मेथड कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉय टाइप का है तो एम्प्लॉय लिखूंगा, फिर डबल कोलन के साथ गेट एज मेथड कॉल कर दिया, पैरेंथेसिस नहीं आएगा, मैंने बताया। तो एज मेरे को दे देगा मिनिमम कंपेयर करके, क्योंकि एज में जैसे यहाँ हार्ड कोडेड भेज रहा हूँ 24, 35, 18, तो कंपेयरिंग इंट मेथड जो कंपेरेटर इंटरफेस का है वो प्री डिफाइंड मेथड है, कंपेयरिंग इंट मेथड, तो वो मेरे को एज को कंपेयर करके मेरे को मिनिमम रिटर्न करा देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका गेट मेथड कॉल करता हूँ, और ये किस टाइप का रिटर्न करेगा, जो मिनिमम मेथड है वो ऑप्शनल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ऑप्शनल टाइप का रिटर्न करेगा, मैं ये यंगेस्ट है, यंगेस्ट से मैं गेट मेथड कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे को ये पूरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट दे रहा है, रेफरेंस आईडी दे रहा है, एम्प्लॉय @this 10F8, ठीक है, ये रेफरेंस आईडी दे रहा है, बट मुझे चाहिए minimum age. So here youngest dot get method is printing the object of employee type, okay, with reference ID. So what can I do, I want to get the minimum age, so from youngest employee object how to fetch, I have to assign it to employee type first. So my class is employee type, and let's say object is emp, and now my youngest dot get method is giving the object and it will be assigned to the employee object. Now from employee object means emp, this reference variable emp, I can get the age from get age method, okay. So now printing the minimum age, okay. Minimum age is from employee object emp dot get, I see I am getting the age, get age method, okay, from employee object, okay. So from get method I was getting the total employee object and I have assigned it to the employee object, then I am getting the getter method, get age method from employee object, okay. See, now it will print the minimum age as 18, okay.
see minimum age is 18. Okay, so you got to know na that collect method, grouping by comparing, so all these stream method. So this code is reduced, you know, in Java 8 this code has been reduced. So instead of bulky code, only in one line I'm comparing, I'm grouping, I'm getting the minimum age. I can sum the elements also through sum method. Okay, so now see how to use the for each method. As you know that if there is a list, I have added in the list Vinay, Daksh, Yugal. So from the list object I am getting the for each method. Inside for each method, what I will do, I will print the simple element objects of this list. Okay, system.out :println. So println is the method, so no parenthesis is used in that for each method. So println is the method. Okay, so I will get the all these Vinay, Daksh, Yugal while this using the for each method. Okay, so what is this consumers, friends? This is the predefined functional interface. Okay, predefined functional interface. So custom interface, custom functional interface means if user is assigning with annotation @functional interface, and he is defining one abstract method and all others are default and static methods. So default methods means it should have the implementation. Okay, so consumer is same as functional interface, but it is predefined. So when I am using this consumer interface, so I am not creating the object. This is the anonymous, means after new consumer I am simply I am using the curly braces. So I have not created the object, I have used as it as the anonymous class. Okay, without name means this is not, I am not creating the object of consumer, because interface object is not created, object of interface is not created. Okay, so this is not the object creation of functional interface, this is the anonymous implementation. Okay, inside curly braces I have overridden its interface method, that is override method, accept method. Okay, so this accept method is overridden, and in this accept method it takes string. Why? Because in the consumer also I have used the generic type as string. consumer interface में भी मैंने string type रखा है, तो ऐसे accept method में भी by default string आएगा. okay? तो ये t इसका रेफरेंस वेरिएबल हो गया string का. ठीक है, तो उसमें मैंने system.out.println से अपर केस मेथड लिया है. स्ट्रिंग का अपर केस मेथड मतलब टू अपर केस, जो भी स्मॉल लेटर में उनको अपर केस लेटर में कर दो. अब मैंने इसको बंद कर दिया, ये कर्ली ब्रेस के बाद सेमीकोलन लगा दिया, यानी कि ये क्लोज हो गया एनोनिमस डिक्लेरेशन. एनोनिमस का ये कंज्यूमर का मैंने पूरा क्लोज कर दिया सेमीकोलन के बाद. नाउ आई हैव टू गेट द अपर केस एलिमेंट, सो आई विल यूज फ्रॉम द लिस्ट, एज लिस्ट इज द नेम्स. So from list I will use names dot for each method. मैंने कॉल कर लिया for each method, और उसके अंदर मैंने पूरा जो मैंने अपर केस ये आया था, ये अपर केस मेथड लिया था. स्ट्रिंग को जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनको अपर केस में करो, तो ये मैंने for each में मेक अपर केस ये डाल दिया, यानी कि कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट डाल दिया. तो कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट डालने का मतलब मैं यहाँ पर जो भी अपर केस लगा रहा हूँ, लोअर केस लगाऊंगा, वो मेरे को for each के अंदर इटरेट करके दे देगा. ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ. मैंने कंसोल में यहाँ पढ़ा होगा, ये देखिए अपर केस में कर दिया ना. विनय को पूरा का पूरा सारे लेटर्स को कैप्स में कर दिया, दक्ष को भी सारे कैप्स तो कैपिटल लेटर में कर दिया, अपर केस में कर दिया. ओके, फॉर ईच के अंदर मैंने कंज्यूमर का फिर ऑब्जेक्ट डाल दिया. तो कंज्यूमर प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस है, ऐसी प्रेडिकेट भी फंक्शनल इंटरफेस है. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर, और फर्दर वीडियोस में और आगे क्रिएट करूँगा.